और आइए अब हम सीधे चलते हैं कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां वो 2 साल के अपने मंत्रालय का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। और साइलेंट मोड प्लीज। नाउ आई रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू रिलीज द सेट ऑफ बुक्स। खोल ही लेना, खोल के दे दीजिए हाथ में। Many of them are like this. इसको हटा देना, इसको हटा देना। हिंदी वाले कहाँ? सारा इंग्लिश। ऐसे ये एक विषय के लिए, एक विषय और एक एक्टिविटी के लिए। एक विषय के हैं बहुत सारी, यही तो हर जॉब के लिए अलग, हर जॉब के लिए अलग है। और ये पहली बार भारत में इसका। कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी इस समय 2 साल में अपने मंत्रालय के कार्यों का आज लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाले हैं। सरकार का मुख्य जोर कौशल विकास पर रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर रहा है, और इसके लिए मिशन मोड में सरकार काम कर रही है। सरकार चाहती है कि कौशल विकास के मामले में हमारे जो युवा हैं वो किसी से पीछे ना रहें, और एक पुस्तिका का भी यहाँ पर लोकार्पण राजीव थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर सर। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू मेक योर ओपनिंग रिमार्क्स। This is the second press conference in a formal PIB setup, one which took place a year and a half ago, and this is after that. And I must thank all of you to be here to cover what we have done in the sphere of skills. For the first time in independent India, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was created. And for the first time, an ecosystem where we had a challenge to train 40 crore people, mostly in the unorganized sector, has been created. And I must appreciate and thank the Prime Minister, who for the first time created this ministry, appointed a minister to give an ecosystem in the space of skills, and also launched the National Skill Development Mission on 15th of July last year. The target which was assigned was 40 crore in next till 2022. The period was 7 years. And the framework and the roadmap to meet this challenge has almost been created. When I say almost been created, this ecosystem was not individually for the Ministry of Skill Development in Delhi. The idea was to give an ecosystem in the sphere of skills across the country. In the traditional framework, the skills which took place in this country, the formal skills which took place was through ITIs and under the certification of National Council for Vocational Training, which was NCVT under the Ministry of Labor. देश के प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, लेबर कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के लिए लेबर
एस्पिरेशनल शब्द नहीं लगता था, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने पूरे ITI का वर्टिकल जो श्रम मंत्रालय में था उसे कौशल विकास मंत्रालय में डाला, and this was the structure of formal skills which we had in the country, spread today to about 13,000 ITIs across the country. Over 2,000 are there in the government, run by the state governments, and rest about 11,000 in the private domain. The Prime Minister chairs the mission, and the first meeting of the mission, an independent India on skills, would be chaired by the Prime Minister on 2nd of June for the first review of the skill mission in Delhi. We will furnish you the composition of the skill mission, which is there, would be participated by several chief ministers who are members of the mission, including several ministries which are part of the mission. The biggest challenge to begin with was that skills was happening in this country prior to our existence. But the states and the center and various ministries in the center were doing skills as and where they thought it was important. But the challenge was to align every skilling which took place in the country to the National Skills Qualification Framework. और आज पूरे भारतवर्ष में चाहे किसी प्रकार का भी कौशल का प्रशिक्षण हो, और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकारें भी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो भारत सरकार के अधीनस्थ कैबिनेट का डिसीजन है, देश के तमाम स्किलिंग को, तमाम कौशल प्रशिक्षण के कार्य को NSQF से अलाइन करने का प्रयास करेंगे। और इसकी रूपरेखा और प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कई राज्यों ने इसको कर लिया है और कई राज्य इसको करने के क्रम में प्रगतिशील हैं। इसके पूर्व राज्य सरकारें जो मॉड्यूलर एम्प्लॉयमेंट स्किल था, जो शॉर्ट टर्म स्किल्स हुआ करते थे देश में, वो NCVT के तहत होता था। अब NCVT के तहत होने वाले तमाम स्किल्स को हम लोग NSQF की तरफ अलाइनमेंट करके भारत में कौशल का एक ही मानक हो, एक ही करिकुलम हो, उसके असेसमेंट की प्रक्रिया एक हो और इसकी मान्यता एक हो, चाहे राष्ट्र के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस मानक को हम स्थापित कर रहे हैं। इसके अन्य तथ्य जो इसके अंतर्गत हैं उसको मैं मोटे तौर से आपके सामने रखूंगा, कुछ आंकड़े जो प्रभावशाली हैं, और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में किए गए काम को आप जरूर उसका अध्ययन करें। और सबसे पहले जो हमारे मंत्रालय के अधीनस्थ और इसके साथ संबंधित मंत्रालयों ने जो स्किल का काम किया है, 2014-15 में विभिन्न मंत्रालयों और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के अंतर्गत जो कौशल प्रशिक्षण का काम हुआ है वो 76 लाख थे पूरे देश में। 15-16 में ये बढ़कर के 1,04,00,000 हुआ, यानी कि 36.8% की वृद्धि हुई। देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ स्किलिंग ट्रेनिंग अक्रॉस द कंट्री इन 1 year was 36.8%. Another significant achievement which was made and which still has great potential, because training can take place in a classroom, in a lab, but the actual training which actually makes you hands-on takes place in the industry. And the process accomplished across the years, across the world, has been apprenticeship. For last 50 years, the Apprenticeship Act, which needed to be amended to bring children from the training institutions to shop floors, was amended in 2014. The rules were notified. And under the Apprenticeship Act, in 2014-15, the number was 2,70,000. In 2015-16, it has gone up to 3,10,000, which is a growth of 15%.
But I can tell you that what is going to bring a great reform in the entire skilling ecosystem across the country, which has been reviewed by the Honorable Prime Minister, is the apprenticeship program, and directions have been issued to all the ministries after the reforms have been brought in, where the cap has been removed. Under the Apprenticeship Act, the Inspector Raj has been removed. The barriers of state-centric training has been removed. The cap has been removed. The industry has been allowed to fine-tune its own modules under flexi policy. And if I have to tell that this is a sphere from 3 lakhs, we have a huge target, and alone the public sector undertaking in this country across ministries, which were only about 10 to 15% of the target, if we are able to increase the numbers of apprenticeship training in the PSUs within the government, it would add another 2 lakhs apprenticeship within a year or two. So apprenticeship training has been revised. And so far, the component of the training which is taking place, 60% of the skill training happens under the purview of the Ministry of Skill Development. 60% जो भारत में ट्रेनिंग का जो स्वरूप है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में होता है, और बाकी 40% अन्य मंत्रालयों में हो रहा है, जो कई योजनाएं हैं जिसके बारे में आप पहले भी सुन चुके होंगे, चाहे वो PMKVY के अतिरिक्त DDU JKVY है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत ISDS है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के तहत NULM है, कई सारी योजनाएं जो विभिन्न मंत्रालयों में चल रही है। इस पूरे इकोसिस्टम में हम लोगों ने पिछले वर्ष 2015-16 तक 1,25,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया है। ITIs के क्षेत्र में देश में तकनीकी शिक्षा जो ITI जो 10वीं पास अथवा 10वीं फेल दोनों प्रक्रिया में करते हैं, और देश में 2014 में जो ITI में प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी वो 15,23,000 थी, जो वर्ष आज की तारीख में 18,65,000 हो गया है। और अगले वर्ष सितंबर 2000 इस वर्ष के अंतकाल तक, अंतिम समय तक, अगले एडमिशन के समय तक हम इसका लक्ष्य लगभग 26 लाख तक विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की ITI में विस्तार करेंगे। देश में जो ITIs 2014 में 10,750 थे, आज की तारीख में 13,105 हैं, इसमें भी 22% की वृद्धि हुई है। फॉर्मल स्किलिंग ट्रेनिंग सेंटर्स जो देश में मई 2014 में 1,736 थे, आज की तारीख में 8,189 हैं, 8,179, और अगले एक वर्ष के भीतर हम इसकी संख्या लगभग 10,000 तक पहुंचाएंगे। सरकार की बड़ी योजनाओं में आज भी देश के 2500 ऐसे ब्लॉक हैं, खंड हैं, जहां किसी प्रकार का टेक्निकल एजुकेशन नहीं होता है, चाहे वो निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में। और इस 2500 ब्लॉक्स जो पूरे भारतवर्ष में हैं, उसमें 1500 ब्लॉक्स में या खंड में हम जहां ITI जहां जिस ब्लॉक्स की आबादी लगभग औसतन 25 से 30,000 के आसपास होती है, जहां नहीं है, यहां हम लगभग 1500, कैबिनेट में ये प्रस्ताव जा रहा है, 1500 स्थानों पर PPP मॉडल में ITIs की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार ने स्वीकृत किया है। ये कैबिनेट के पास विचाराधीन शीघ्र होगा। ट्रेनिंग अकेले क्लासरूम में नहीं हो सकता है, इसके लिए कई माध्यम पूरी दुनिया में उपयोग किए जाते हैं। कुछ लोग प्रशिक्षित होते हैं, कुछ लोग स्कूली अध्ययन के बाद निकलते हैं, और इसलिए हम लोगों ने कई सारी प्रक्रियाओं को प्रारंभ किया है, और उसमें चैनल्स, डायरेक्ट टू होम चैनल्स, स्किल्स के चैनल को प्रारंभ करने का हमने प्रस्ताव रखा है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस का हम लोगों ने इस पर काम करना प्रारंभ कर दिया है।
और skillsonline.com करके इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम स्किलिंग ऑनलाइन भी कराने का प्रस्ताव रख रहे हैं। और इसके साथ इन स्किलिंग के प्रक्रिया में जो लोग ऑनलाइन स्किलिंग के साथ साथ अगर सेंटर्स पर जाकर के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं स्किल्स ऑनलाइन के बाद, तो इसका भी प्रावधान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो मॉडल स्किल सेंटर्स तैयार हो रहे हैं उन स्थानों पर इसको किया जाना है। भारत की सरकार ने एक बड़ा निर्णय पिछले वर्ष लिया था कैबिनेट में, कॉमन नॉर्म्स, और ये कैबिनेट का डिसीजन था। और कैबिनेट के डिसीजन के तहत 1 अप्रैल 2016 से भारत सरकार के अंतर्गत तमाम प्रशिक्षण जो कौशल के क्षेत्र में हो रहा है, they have to align with the common norms, and this is one thing which is being mandated so that all the skilling which takes place across the country is on the same parameters. करिकुलम और कंटेंट सभी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग था। कुछ लोगों ने स्वयं तैयार किया था, कुछ एनसीवीटी का था, कुछ संस्थाओं ने तैयार किया था। देश में इस बात का अनुमान लगाना बड़ा कठिन था कि आखिर किस कौशल के लिए कौन सी पढ़ाई हो, उसका करिकुलम क्या हो, उसका कंटेंट क्या हो। और आज आपने जो देखा वो इस प्रक्रिया को बड़े स्वरूप से तैयार करने का प्रोसेस जारी हो गया है। और अभी भारत में एकत्रित रूप से 251 जॉब रोल के लिए 100 कोर्सेज एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं, जिसे पब्लिश कर दिया गया है। एक नया प्रक्रिया जो प्रारंभ किया है कि इंडस्ट्री तय करेगा कि हमको किस प्रकार का प्रशिक्षित व्यक्ति हमारे काम के लायक है। सो इंडस्ट्री वैलिडेशन ट्रेनिंग में कौन सी पढ़ाई किस प्रकार से हो, उसमें मानक क्या हो, उसमें इक्विपमेंट क्या हो, उसकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया क्या हो, ये इंडस्ट्री भी तय करके हमें बता रहा है। और इंडस्ट्री वैलिडेटेड लगभग 1500 कोर्सेज को हम लोगों ने NSQF के तहत स्वीकृति दी है, ताकि उद्योग जगत खुद बताए कि एंट्री लेवल पर हमें किस प्रकार के लोग चाहिए और हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। इंडस्ट्री पार्टनरशिप के लिए हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसमें 40 सेक्टर स्किल काउंसिल की स्थापना की गई है। ये 40 सेक्टर स्किल काउंसिल इंडस्ट्री बॉडीज हैं, चाहे वो ऑटोमोटिव के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, लाइफ साइंसेज के लिए हो, कंस्ट्रक्शन के लिए हो, रिटेल के लिए हो, ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए हो, इस प्रकार से, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए हो। ये सभी सेक्टर स्किल काउंसिल की स्थापना की गई है। जो इंडस्ट्री बॉडी होते हैं उसके चेयरमैन इंडस्ट्री बॉडी होते हैं, और वो CEO अपॉइंट करके इन तमाम प्रशिक्षण के कार्य में इंडस्ट्री को क्या आवश्यकता है उसकी तैयारी करके हमें बताते हैं, हम उसको सर्टिफाई करते हैं। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की एक बड़ी रूपरेखा तैयार की जा रही है, ताकि ये पूरा काम, क्योंकि इस मंत्रालय का काम है सबसे पहले मोबिलाइजेशन, वैसे लोगों की पहचान करना जिनको प्रशिक्षण देना है, और आज की तारीख में हम इसे कह रहे हैं कि 50 करोड़ लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं। दूसरा है कि इनकी पढ़ाई अगर हो, इनका प्रशिक्षण अगर हो तो किस मानक के तहत हो उसकी तैयारी कराना। तीसरा है कि अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तो इनका असेसमेंट कैसे कराना है, और असेसमेंट के बाद इनको सर्टिफिकेट किस तरह देना है। और चौथा इस मंत्रालय का काम है कि एक बार ये व्यक्ति जब प्रशिक्षित हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, तो या तो रोजगार की तरफ उसे जोड़ा जाए या स्वरोजगार की तरफ जोड़ा जाए, जो उद्यमिता की तरफ ले जाए, चाहे वो बैंकों से फाइनेंस कराना हो, मुद्रा योजना से जोड़ना हो, और सरकार की अनेक जो इंक्लूसिव स्कीम है उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे यहाँ चाहे ITI के प्रशिक्षित नौजवान हो या स्किल्स इकोसिस्टम में जिनकी तैयारी हम करा रहे हैं, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके मानक उपयुक्त हैं कि नहीं, क्या ये बच्चे जो यहाँ प्रशिक्षित हो रहे हैं इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के लायक होगा नहीं। और इसके लिए हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से और ऑस्ट्रेलिया से जो साझेदारी की है, जो स्किल गैप हमारे ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे यूनाइटेड किंगडम में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, जो गैप है उसकी असेसमेंट की जा रही है, और उसको उस अनुपात में हम लोगों ने परिवर्तित किया है। और यूनाइटेड किंगडम के साथ 82 ऐसे जॉब रोल हैं जिसका प्रशिक्षण यदि हम भारत में करते हैं तो उसकी मान्यता रोजगार के लिए यूनाइटेड किंगडम में है। और इसी प्रकार से 26 ऐसे जॉब रोल्स हैं जिसका प्रशिक्षण अगर हम यहाँ करते हैं
और उसका सर्टिफिकेशन यहाँ होता है तो उसकी मान्यता ऑस्ट्रेलिया में भी होगी। ये बहुत बड़ी शुरुआत है जो आज तक पिछले 67 वर्ष में भारत में नहीं स्थापित की गई थी। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, चाहे दक्षिण के क्षेत्र में हो या देश के कोने कोने से हो या फिर वैसे प्रांत चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां बड़ी संख्या में नौजवान विदेशों में काम करने जाते हैं और जिस प्रकार से उनका रिक्रूटमेंट होता है विदेशों में सेवा के लिए, ये एंट्री लेवल जॉब्स हैं, चाहे प्लम्बर्स हैं, फिटर्स हैं, मेशन्स हैं, हाउस हेल्प हैं, बहुत प्रकार की सेवाओं के लिए विदेशों में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स हैं, नर्सेज हैं, इनकी बड़ी संख्या में लोग विदेश जाते हैं। लेकिन औपचारिक रूप से इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भारत में 67 वर्षों में नहीं किया गया था। ये अनौपचारिक तौर से इस लोगों को रिक्रूट किया जाता था और विदेशों में भेजा जाता था और कई बार ऐसे परिस्थितियां आती थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के बाद आज भी हजारों की संख्या में ऐसे केस मुकदमे में नौजवान भारत के फंसे हैं जो शायद प्रशिक्षण के अभाव में उन देशों में जाने के बाद उनके नियमों का उल्लंघन करने के कारण अथवा उस उपयोग में नहीं होने के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ हम लोगों ने तय किया है कि पहले चरण में 11 ऐसे स्थान जहां प्रशिक्षित व्यक्तियों को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए हम प्रशिक्षण देंगे, उसका खर्च भी देंगे, उसके पासपोर्ट से लेकर के उसकी वीज़ा की तैयारी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से एम्बेसीज के लिंकेजेस, वर्कर्स को लिंकेजेस, एम्प्लॉयर्स के साथ लिंकेजेस और उस मान्यता को ताकि जाने वाले व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठिनाई ना हो और उसका एक बड़ा इकोसिस्टम पहली बार भारत में तैयार किया जा रहा है। आईटीआईज के बारे में कुछ कठिनाइयां थीं और कई बार हम लोगों ने देखा है कि आईटीआईज कुछ तो बहुत ही बेहतरीन हैं, लेकिन कई ऐसे आईटीआईज हैं जिनकी गुणवत्ता में सुधार की बड़ी ज़रूरत है और इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि कुछ राज्यों में आईटीआईज का बौछार बन गया, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कई स्थानों में, क्योंकि अभी तक आईटीआईज के सर्टिफिकेट का उपयोग सरकारी सेवा में होता था, रेलवेज में, पीएसयूज में, और कुछ ही ट्रेड्स की मान्यता थी। हम लोग इस इकोसिस्टम को चेंज कर रहे हैं ताकि देश में हर 167 ट्रेड जो आईटीआई में फॉर्मल रूप से पढ़ाया जा रहा है उसका भी उपयोग हर क्षेत्र में हो सके। तो इसमें भी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आईटीआईज की गुणवत्ता बढ़े। इस पर हम लोग बड़े तौर पर काम कर रहे हैं। करिकुलम और कंटेंट के बारे में बताया है, हम लोग बड़े तौर पर सभी देश के करिकुलम को, कंटेंट्स को एनएसक्यूएफ से अलाइन कर रहे हैं और एक सबसे बड़ा निर्णय जो आने वाले दिनों में होगा, जिसे कैबिनेट तक हम लेके जा रहे हैं, पार्लियामेंट में जाएंगे, नेशनल बोर्ड फॉर स्किल्स असेसमेंट एंड सर्टिफिकेट। अभी तक ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जो असेसमेंट और सर्टिफिकेशन का कॉमन हो। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से कर रहा है, चाहे वो एनसीवीटी में हो या राज्य सरकारें हो। वी आर क्रिएटिंग वन एक्ट फॉर नेशनल बोर्ड फॉर स्किल असेसमेंट एंड सर्टिफिकेट। ये सबसे बड़ा कदम होगा ताकि देश भर में जो भारत सरकार के अंतर्गत संबंधित इकाइयां हो या राज्य सरकारें जो करना चाहें, देयर वुड बी अ कॉमन असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन बोर्ड। असेसमेंट पर भारत में अभी बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, असेसर्स पर बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। जो स्किलिंग के बारे में जानते होंगे उनको ये पता होगा कि असेसमेंट एक ग्रे एरिया है और इसकी मान्यता स्थापित करने के लिए देश में, सो वी आर गोइंग बिटवीन एनसीवीटी एंड एनएसक्यूएफ, वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ नेशनल बोर्ड फॉर स्किल असेसमेंट एंड सर्टिफिकेट। इसका एक्ट तैयार किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जुलाई सत्र में हम इस एक्ट को पार्लियामेंट में ले जाने में सफल होंगे। भारत के भीतर हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और कॉर्पोरेट स्किल सेंटर्स की स्थापना की जाएगी जो कॉर्पोरेट्स के साथ मिल करके, क्योंकि वो अपने स्किल की मान्यता अलग रूप से देखना चाहते हैं, तो उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो स्थापित करें। पीएसयूज के साथ हमारी बड़ी पार्टनरशिप है और इस देश में आज भी पीएसयूज का जो सिस्टम है उसमें ट्रेनिंग की बड़ी गुंजाइश है, उनके बड़े सेंटर्स हैं, लेकिन उनकी अलाइनमेंट नहीं होने के कारण उन पास किए हुए प्रशिक्षार्थियों को रोजगार का लाभ नहीं हो पाता है। पहली बार एक ऐसा पोर्टल स्थापित किया जा रहा है जिसका बीटा वर्जन हम लोगों ने लॉन्च किया है, अभी पब्लिक डोमेन में है, उससे कमेंट्स बना रहे हैं। LMIS का, लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम,
इसके बाद इसका हम लोग नाम परिवर्तित करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी बीटा स्टेज में है, इसको अभी हम लोगों ने, जिसमें देश भर में तमाम स्किलिंग की जो गतिविधि है, बच्चों के सर्टिफिकेट से लेके, ट्रेनिंग से लेके, विद्यालयों से प्रशिक्षण से लेकर के, एम्प्लॉयर से लेकर के, राज्य सरकारें में प्रशिक्षण से लेके, इंटरनेशनल डिमांड से लेके, हर कुछ इस वेब पोर्टल पर आएगा, ताकि पूरे इकोसिस्टम में हर को पता चल सके, गांव देहात में बसे नौजवान से लेकर के कॉरपोरेट्स में बैठे बॉसेस को भी पता चल सके कि आज हमारे पास कितना स्किल्ड फोर्स है, किसका प्रशिक्षण कहां प्राप्त हुआ, किस गुणवत्ता के साथ हुआ, और इस व्यक्ति और बच्चे का अभाव क्या है। यह कनेक्ट इसलिए जरूरी है कि आज अगर मैं चर्चा करूं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कल सुबह 1 लाख बच्चों की जरूरत है, लेकिन वो जहां जरूरत है वहां वो बच्चे नहीं हैं, और जहां बच्चे हैं वहां उनको जानकारी नहीं है कि हमें यहां प्रशिक्षण मिले तो हम वहां जा सकते हैं। देयर इज अ कंप्लीट डिस्कनेक्ट बिटवीन द जॉब अपॉर्चुनिटी एंड द जॉब अवेलेबिलिटी and the people who are being trained. There is a complete disconnect in this country, and every day when we examine things, we realize that jobs are there in plenty. There is a demand and supply, but possibly this migration, geographical connect has not been established. As a result, some sectors have huge shortage of manpower, and there is a surplus human resource which remains untapped. So this linkage has to be established. यही कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, यही ऑटोमोटिव के क्षेत्र में है, और बड़े पैमाने पर आज के तारीख में जो हमारे पास डिमांड है, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हमें लिंक करना है, और उसके लिए ये पोर्टल कामयाब होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। एक बहुत बड़ा निर्णय कल हुआ है, और शायद इस निर्णय के बारे में मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि ये ऐतिहासिक निर्णय है। हम सब जिस आयु में होंगे, हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, हम लोगों ने समय समय पर सुना होगा, कई सारे लोग आप ऐसे होंगे जो इस शिक्षा माध्यम से नहीं गए हों, तो शायद आपकी अनभिज्ञता हो सकती है। लेकिन जो आज 18 लाख बच्चे हमारे ITI से पास आउट कर रहे हैं, और पिछले 67 वर्ष में लाखों की संख्या में इस प्रकार के बच्चे पास आउट किए हैं, इन्हें 12वीं के बाद या ITI के सर्टिफिकेट के बाद ये सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं थी कि ये आगे की पढ़ाई कर सके। ना वो BA की पढ़ाई कर सकता है, ना ISc की पढ़ाई कर सकता है, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसका प्रशिक्षण वहीं समाप्त हो जाता था। और 67 वर्ष में करोड़ों बच्चों ने जिन्होंने ITI और NCVT का सर्टिफिकेट लिया है, वो उनका कार्य वही समाप्त हो गया, क्योंकि किसी ने आज तक तय नहीं किया कि इसके बाद भी इन बच्चों की आकांक्षा हो सकती है कि ये आगे की पढ़ाई करें, चाहे टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। मिनिस्ट्री ऑफ HRD के साथ हम लोगों ने बातचीत की, ये प्रयास जारी था। देश के प्रधानमंत्री ने इसका एक सफल प्रयास गुजरात में किया था, आंशिक रूप से बहुत सफल रहा था वो, और आज कल ये समझौता हुआ है to get academic equivalence to ITI pass outs so their academic career can progress. कई लोग तो बड़े उम्र में भी जाकर के PhDs करते हैं। हमारे जैसा आदमी जो लॉ का भी विद्यार्थी था, उसके बाद इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ, और स्किल्स में मुझे बढ़ाना था, तो मैंने अपने आप को एक पायलट के रूप में आज देश का सबसे बड़ा विमान उड़ाता हूँ। ये तभी संभव हो पाया कि इस करियर प्रोग्रेशन का एक वहाँ रास्ता था। अगर ये होता कि उस सर्टिफिकेट की मान्यता इस पढ़ाई के लिए, फ्लाइंग की पढ़ाई के लिए नहीं होती, तो शायद मैं आज पायलट नहीं बन पाता, जो मैं 45 साल की उम्र में पहली बार देश के इतिहास में कोई आदमी स्किल्स को बढ़ा करके इस अनुपात तक पहुंच सका। और ऐसा ही एस्पिरेशन इन बच्चों का भी होगा जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो BA BSc करना चाहते हैं, जो PhD करना चाहते हैं, लेकिन ITI के विद्यार्थियों को ये उपलब्ध नहीं था। और थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो बच्चा 10th क्लास पास हो और ITI 2 साल का करे, उसको 12वीं का सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट दिया जाएगा, और पूरे भारतवर्ष में उसकी मान्यता होगी। वो ITI भी होगा, 12वीं का सर्टिफिकेट भी होगा, और आगे की भी पढ़ाई वो कर सकता है। जो 8th क्लास पास आउट होगा,
ITI प्रशिक्षित होगा और वो अगर ये पास कर देता है तो उसे 10th का मैट्रिकुलेशन का सेकेंडरी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सिर्फ उसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज में एक विषय अंग्रेजी का हो, एक विषय और एक और विषय जिसको वो चुनेगा, स्किल्स के बारे में जिसका प्रशिक्षण होगा, 2 परीक्षा दे करके उसके पास वो सर्टिफिकेट होगा और वो आपके और हमारी तरह आगे के प्रशिक्षण के लिए उसकी मान्यता होगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है। आपको शायद इस शब्दों से अंदाज नहीं लग रहा होगा क्योंकि आप सब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से आगे निकल के अपनी जिंदगी में सेटल कर गए हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जो कभी क्यों ITI नहीं करते थे, क्योंकि ITI में भी एडमिशन लेते थे और साथ साथ कॉलेजों में भी पढ़ते थे। क्यों? इसलिए कि उनको लगता था कि अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो किसी सरकारी नौकरी में BA मांगेगा तो मैं नौकरी ले सकता हूं। यह ऐतिहासिक निर्णय है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इसमें हस्तक्षेप किया और ये इक्विवेलेंस स्किल इकोसिस्टम का पूरा इकोसिस्टम को बदल डालेगा और मैं समझता हूं कि इस बात को आप सब लोगों को भी प्रमुखता से समझना चाहिए और लिखना चाहिए और आपकी भी सहयोगिता इसमें चाहिए कि देश के लोगों को इस बात की जानकारी मिले। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज NIOS, HRD मिनिस्ट्री, बहुत दिन से लंबित था ये विषय। इसका स्मृति ईरानी जी से बातचीत हुई और उन्होंने सहमति दी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा स्मृति ईरानी जी का, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और आने वाले दिनों में ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम देश के लिए एक बहुत बड़ा लाभ का विषय बनेगा। एकेडमिक इक्विवेलेंस जिसको हम कह रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि ITIs हैं, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो शॉर्ट टर्म स्किल्स होते हैं, 1.5 महीने 2 महीने के लिए जो स्किल्स हो, 3 महीने के लिए ब्यूटिशियन का, हेल्थ का, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का, इस प्रकार से। तो देश में लगभग 600 जिला और मोटे तौर से हर संसदीय क्षेत्र में एक मॉडल स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी, जहां शॉर्ट टर्म स्किलिंग अंडर NSQF स्थापित किया जाएगा और इसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो दूसरा स्वरूप है PMKVY 2 में इसको हम लॉन्च कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अगले 6 महीना में प्रत्येक जिला में इसकी स्थापना होगी, जो मॉडल स्किल सेंटर्स होंगे। हमने आग्रह किया है, देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का सुझाव था, देश पहली बार देखेगा। हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जब कॉन्वोकेशन होता है, BA का होता है, MA का होता है, PhD का होता है, सब लोग रोब्स पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, प्रोसेशन निकलता है, पोडियम पर खड़े होते हैं, सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। ये सिर्फ विश्वविद्यालयों तक ही केंद्रित था या महाविद्यालयों तक केंद्रित था। हम पहली बार देश में ITI से पास किए हुए बच्चों के लिए कॉन्वोकेशन करेंगे और उसको भी उसी धूमधाम से रोब्स पहना करके पूरे भारतवर्ष में ये बच्चे भी उसी मान्यता के साथ, उसी रुआब के साथ उसे डिग्री देंगे। और मुझे विश्वास है, मैंने आग्रह किया है देश के प्रधानमंत्री जी से कि पहला कॉन्वोकेशन जो 67 वर्ष के इतिहास में पहली बार किया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका विमोचन, इसकी शुरुआत करेंगे। स्किल यूनिवर्सिटीज, राज्यों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो अपने एक्ट के तहत, और जो हम स्किल एक्ट लाने की बात कर रहे हैं उसमें स्टेट्स को भी ये स्किल यूनिवर्सिटीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना करने का हम प्रस्ताव दे रहे हैं। और देश में वर्षों से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में, संरचना के निर्माण में, भवनों के निर्माण में, बिल्डिंग्स के निर्माण में सरकार के, राज्य सरकार के और केंद्र सरकारों का बहुत पैसा खर्च हुआ है। हम लोग पब्लिक सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से ये आग्रह कर रहे हैं कि आपके पास ट्रेनिंग का जितना भी स्पेयर बिल्डिंग्स, जगह, भवन उपलब्ध हो, उसको स्किल सेंटर्स के रूप में परिवर्तित किया जाए। और कई जगह एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवेज, मिनिस्ट्रीज, PSUs, पावर मिनिस्ट्री, बहुत सारे संस्थानों ने देना प्रारंभ किया है। उसके लिए हम लोग MOU का हस्ताक्षर कर रहे हैं। टेलीफोन एक्सचेंजेस, और इस पूरे प्रक्रिया में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, लेफ्ट विंग एफेक्टेड एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, वुमेन, और इस पूरे में 50%
महिलाओं का अनुपात रहे, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। और दिव्यांगों के लिए विशेष तौर से देश के प्रधानमंत्री के निर्देश पर और हम लोगों ने एक आस्था व्यक्त की है, विकलांगों के लिए भी प्रशिक्षण का कार्य पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज सेक्टर स्किल काउंसिल इसको प्रारंभ करेगा, तो उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। जो RVTIs फॉर वुमेन हैं वो 11 फंक्शनल हैं विभिन्न राज्यों में। 5 की शुरुआत 2015-16 में हुई है। 3 और जो है महिलाओं के लिए विशेष रूप से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, अगला 3 2016-17 में स्थापित किया जाएगा। PMKVY और ITIs में प्रत्येक हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल सकता है, क्योंकि रोजगार का इकोसिस्टम स्वरोजगार से भी जुड़ता है। और कई बार हम जब रोजगार की परिभाषा देते हैं तो नौकरी समझते हैं, लेकिन स्वरोजगार भी रोजगार है। और इसलिए ITIs में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ कोर्स, एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, ताकि जो बच्चा ITI में जाए, अगर वो अपना उद्यम या अपना काम प्रारंभ करना चाहता है तो उसको पहले दिन से ही हम लोग एक्सपोजर देंगे कि तुम ये काम करके अपना दुकान, अपना कारोबार स्थापित कर सकते हो, अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो, अपना काम कर सकते हो। उसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल को, और स्कूल एजुकेशन में हमारा मैंडेट, थोड़ा आप लोग कृपया इस बात को करें, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडर्ड इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप की दूसरे मॉडल को देख रहा है। हम तो इन बच्चों को जो स्कूल से निकल करके अपने आप को उद्यमिता में ढाले एंट्री लेवल पर, उसका प्रयास कर रहे हैं। और एक शब्द हमेशा हमें ध्यान रखना होगा, मेक इन इंडिया बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने एक बड़ा अभियान चलाया है मेक इन इंडिया का, कामयाब है। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, माहौल बन रहा है, निवेश आ रहा है। मेक इन इंडिया का काम बड़े गति से चल रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया तब तक सफल नहीं होगा जब तक मेकर्स इन इंडिया ना हो। और इस मंत्रालय का बड़ा काम है टू प्रोवाइड इनफ मेकर्स इन इंडिया, जो कौशल युक्त प्रशिक्षित लोग हों। और ये मेकर्स इन इंडिया के लिए हम इस काम को कर रहे हैं। रोजगार मेला, रोजगार उत्सव बड़े पैमाने पर देश में और इंडस्ट्री से हम जोड़ करके सभी ITIs और इनके साथ लिंकेज की स्थापना कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चुनौती इस मंत्रालय का था, कन्वर्जेंस का, बहुत मंत्रालय, बहुत राज्य सरकार विभिन्न प्रकार से कर रही थी। कन्वर्जेंस बड़े तौर पर राज्य सरकारों ने भी स्किल मिशंस की स्थापना करनी शुरू कर दी है। और हमने कहा है कि जिन जिन राज्य सरकारों में कन्वर्जेंस हो जाएगा, और वही भारत की सरकार में भी हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं, ताकि स्किल का सब काम एक केंद्रित हो और उसकी रूपरेखा स्थापित हो। कन्वर्जेंस एक चुनौती थी जिसको हम पूरा कर रहे हैं, और सभी राज्य सरकारों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। और कई राज्य सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं स्किल के क्षेत्र में, और उनको और मजबूती से बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, दक्षिण के कुछ प्रांत और भी हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब में अच्छा काम चल रहा है। ईस्टर्न सेक्टर में भी हम इस काम को बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए विशेष तौर से देश के प्रधानमंत्री ने स्किल्स का स्वरूप बढ़ाने का निर्देश दिया है, जिसे हम कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप के बारे में और विभिन्न योजनाओं के बारे में वर्ल्ड बैंक से हमारी कई सारी योजनाएं हो रही हैं, जो राज्यों को साधन एवं सहयोग उपलब्ध कराना है। वर्ल्ड बैंक से कई सारे, अभी $1 बिलियन का एक स्वीकृति आया है, जिसमें राज्यों को हम वर्ल्ड बैंक के सहयोग से गुणवत्ता देने के लिए और उनको सहयोग करने के लिए और प्रशिक्षण का काम करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं। और उसमें उद्यमिता एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, जो 2016-17 से प्रारंभ करके और हम लोग 2020-21 तक ले जाएंगे। ये भी वर्ल्ड बैंक का ही प्रोजेक्ट है। इसके साथ जो कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन मोटे तौर से हम ये कहना चाहेंगे कि 1.5 वर्ष में, मेरा कार्यकाल 1.5 वर्ष का हुआ है, तो विभिन्न मंत्रालयों ने, क्योंकि ये मेरा मंत्रालय हॉरिजॉन्टल मिनिस्ट्री है, इसमें सब मंत्रालय में कुछ ना कुछ काम चल रहा है, सबको एक दिशा देना, सबको एकत्रित करना, सबके साधनों को सही दिशा में विषय जाए। तो मोटे तौर पर सभी मंत्रालयों ने मेरे साथ बड़ा सहयोग किया है, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का पूरा स्पष्ट निर्देश है कि सभी चीज़ों को कन्वर्जेंस करना, मान्यता देना और रोजगार की तरफ ले जाना, और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों ने समय समय पर इस मंत्रालय के बारे में लिखा है। ये मंत्रालय बिल्कुल नया है,
और ये भारत में लिखे जाने वाले सभी मंत्रालयों में से सबसे नया मंत्रालय है, इसलिए स्वाभाविक तौर से उतना समाचार नहीं बना होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जैसे पत्रकार जो इतनी बड़ी संख्या में आकर के मेरी बातों को आपने सुनने का प्रयास किया है, आप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए स्किल्स के इस बड़े आयोजन में, इस बड़े विस्तार के काम में आपकी भी भागीदारी होगी। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। Thank you, Honorable Minister, sir, for your comprehensive address. Now we'll